everyone, welcome back to my channel. I am Bani and today we will be talking about our experience from the beginning till the end, and this will be divided in two parts. So this would include the beginning, I mean how did we really think of going to Canada, then the first agent that we met. So from the first knock to the agent till the day we landed in Canada. So this is what it will include in this part of the video, the first part, and the second part would be what really happened after we landed in Canada. So the initial settlement I'll be talking about in the second part. That will have my housing, like renting a house or Airbnb, the transportation, buying our first car, the furniture, shopping, so the initial investment that we did, and the initial settlement that really happened once we landed here, like for good 1 to 2 to 3 months experience. I'll be sharing it with you, like good 4 months experience by the way. So that will be in second part. So let me just begin with the first part. So I'll be very raw, I'll be very clear and honest with you in this video. So I always wanted to settle abroad. And why did this thinking came was because I had spent some of my time in my internship in Malaysia and Germany. So my experience was really good and everything was better, and there are a lot of reasons that everybody knows that why we want to shift. So then we were really concerned about where exactly do we shift. So we were confused between 3 countries: Australia, New Zealand and Canada. So we did go to a few agents and everybody recommended us for Canada and not Australia, and I was somewhat interested in Canada. So after this recommendation of going to Canada and not Australia, we did some research. So we did some research on the country and we did what are the benefits of the country if we like be the permanent resident of the country, what are the benefits that we can get and stuff. So we were quite attracted towards the whole situation of Canada. So then it had to be Canada. Now let's just talk about the actual process, what really happened. So we somewhat thought to go for this ex-company, ex-agency, ex-agent and go further with them with our process. So it was our biggest stupidity, it was our biggest mistake to really give the money to them and really put our file, you know, into the pool with this company. So it was really a big mess. So good 6, 7, 8 months, 1 year, we were fooled by this company that hamara aa jayega and koi baat nahi and all of that. So what was the experience like? These people were after our life to give the money and start the process. And as we were the newbies in this field, we did as per what these people were telling us. And we had given IELTS, WS करवाया, World Education Services से अपनी bachelor की degree दोनों ने approve करवाई, everything was sorted. We did our first IELTS, so the score was not that good. But as per our zero knowledge, this agent, let me just be very clear, it's Apex Visas who fooled us. So I don't know if it's the company or the case officer, but we had a horrible experience with this company. And when we were going to the management and talking to them, nobody was interested because they got the money. So now nobody is interested to talk to us, nobody's interested to really solve our problems. So the 2 person that we were in talking terms with, first was the salesperson, she left the company, so she could not do anything. And the second was the sales manager, so she was in the management position, even she left the company. So we were left with no one but to talk to the case officer, and rest nobody was helping us from that company. And after wasting good 1 year, so within wasting that 1 year, another thing which was going side by side was my father was forcing me to do my masters, and I didn't want to do it. Why? Because मैं पापा को कहती थी, पापा मैंने तो अगले महीने ही कनाडा चले जाना है, तो मास्टर्स कैसे कर लूँ? So my father was after my life. So long story short, somewhat he convinced me and I did my masters. So wasting 6 months here, technically 1 year in Apex Visas, and side by side giving my masters. Then we planned to switch the agency, but then we were really concerned. And why did we waste so much of time in the first company? Why? Because we had given all the money and we still had some hope, and we just wanted either वो पैसे वसूल हो जाए या वापस आ जाए, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, हमने मास्टर्स साथ में, मैं मास्टर्स दे रही थी और साथ में हमने एजेंसी दूसरी ढूंढनी शुरू कर दी. एंड पता है हमारी बेवकूफ़ी थी कि हमने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, हम बस चले गए. हमने 4-5 एजेंसी से बात करी, लाइक इन पर्सन, नॉक एंड हेलो कैनेडा, हेलो ऑस्ट्रेलिया, कोई कहीं भेज दो, वैसे वाला चीज़. बट हमें ये सेल्स में अच्छी थी बंदी, या इसने कन्विंस कर लिया, जो भी था, हमारे पैसे डूबने ही थे, तो वो चीज़ हो गई. चलो ठीक है, तो फिर हमने बेवकूफ़ों की तरह फिर हमने बाद में रिसर्च करी. हाँ, इतना ही लिखना था गूगल पे एपेक्स वीज़ाज रिव्यूज़, तो पहले कर लेते तो बच जाते. चलो बाद में करा, बाद में करने के बाद पता चला कि पूरा का पूरा कंप्लेंट्स का चिट्ठा ही खुल जाता है गूगल पे एपेक्स वीजास को लेकर.
तो हमने कहा हो पैसे तो फंस नहीं थे, जो भी, चलो दैट वाज दिस एक्सपीरियंस आई हैड. देन हैपेंड वाज मेरे डैड, ही वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर एंड देन ही रेड दिस आर्टिकल where this company was promoting and saying that we will send you to Canada on PR, and if we are unable to do it, we will return your money back. We wanted someone like this who can give us this kind of assurance. We went to this company and we had a discussion with this company, and we went with the first results of our IELTS, and I was in the midway of my masters. I had a word with one of the girls working there, so she was like, what I would recommend is you should give your IELTS again, both of you, like me and my husband, and score this much marks, and then it will be easier for you to go. Otherwise, with the kind of score you have right now, you will be eligible for Manitoba. So this is one of the province in Canada. And then we were like, we are fine, we don't mind, we just want to go to Canada. Manitoba is fine to us, because we had no knowledge about it. So then she's like, no, it's not fine, it's like a small village, and no offense to people living there, first of all. So this is the kind of experience and this is the kind of feedback I got, and I want to be honest in this video. That's why I'm saying, if you don't like it, move forward. So she was being very honest, and she's like, I would not recommend you to go to Manitoba. A, it is tough, B, it is the coldest, and C, I think you should definitely try again giving your IELTS. Why? Because it's just the first time, and there are some tips, she told me. So there are some tips and tricks, and not really the English. So English everybody can crack, I mean most of the people can crack, but still people think, why are we not getting those scores in IELTS? But then she gave us some of the tips. One of the tips I will just give you now, and then rest of the tips you will see it on my channel. That you should not write the initial stuff like your details of your name, your roll number and stuff with pencil. And we did for the first time. We should do it with a pen, because बहुत scam चल रहा है इंडिया में, बहुत झोल चल रहा है, तो वो मिटाकर दूसरा नाम कर कर they can do that. ऐसे ही बहुत सारे टिप्स थे जो इंग्लिश से रिलेटेड नहीं थे, जो जनरल टिप्स थे, तो उसने काफ़ी हेल्प किया. So she told us few tips and she is like कि तुम IELTS के लिए यहाँ पर join कर सकते हो. If you want, you can come and take classes. If you want, we can just send you all the material that we have, and you can study, give IELTS again, and then you can come back to us. So we were quite convinced. These people were not really after our life to just give them money. Yeah. So A, we were convinced with that. Second, I was like, I really don't want to come to Delhi from Gurgaon and study. So it's better if you give me the material. I'll go through that. So she was all fine with that. We appeared for the IELTS exam again, and then I was left with few months of my masters. So I gave my IELTS, I did my masters, and then I went to this company with the better score and stuff. So we met this person again, and then she was like, yeah, you can definitely apply for Canada now, and you have good scores and stuff. So now then she calculated our whole score, like the CRS score and everything, and it was pretty good. And she's like, now you'll be able to crack whenever there will be your next job. Then we were still not sure about it. ना नेगेटिव हो चुका होता है तुम्हारे साथ कि तुम ना श्योर नहीं होते किसी चीज को लेकर, तुम किसी बंदे को लेकर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. तो हमने बोला we would like to meet the owner of the company if that's fine, and then we would like to move forward with the case. So these people were quite nice. So the second company that I'm talking about, the whole story of it, is the company, I would like to tell the name. The company is Nationwide Visas, again in Delhi. So we met Mr. Rajiv, he's the owner of the company. He gave us full assurance after checking all the score. So हवा में बातें नहीं हो रही थी, अरे हम करवा देंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे बेफालतू की बकवास बातें नहीं थी. He checked the score. He actually checked that if we really can fly or not, and then he gave us the assurance that don't worry, things will fall into place and you can trust us. So this time we did not do the second mistake of giving the whole money together. So we did give in installments. Yeah, we started with our case. WS के लिए भेजा अपनी मास्टर्स की डिग्री, वो करवाने भेजा. बैचलर्स तनवीर और मेरी पहली हो चुकी थी पहली कंपनी के साथ, तो हमारे पास वो वाले डॉक्यूमेंट्स थे. तो उसके साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ मेरा कि ना, जिस दिन आनी थी, जो लास्ट डेट थी मेरी WS की रिपोर्ट आनी थी, उस दिन वी वर रियली टेंस्ड, बिकॉज ऐसा होता है ना जब तुम्हारे साथ हर चीज गलत हो रही होती है तुम इतने नेगेटिव हो जाते हो, शायद ये भी गड़बड़ी होगा वैसे वाला. तो और इतनी मेहनत करी हो तुमने हर चीज में, तो क्या हुआ, जिस दिन आना था ना रिजल्ट, हम बहुत परेशान थे, हम बैठे हुए थे रात को. तो 11 बजे राजीव का जो ओनर है उनका मैसेज आता है मुझे और तनवीर को कि don't worry and congratulations, your WS is cleared for masters. We were really happy and relieved. Also what we noticed was the owner is actually taking extra effort in your case, like in our case, and making sure that things do fall in place. We were really impressed with the services that we were getting. So that was the thing till WS. This was the experience till WS with the second company. And then
I was introduced to my case officer. She was so hardworking in my case. I mean, I think this is the way she is. And she was so hardworking. She was giving her 100% because my experience earlier with the case officer in Apex visas was total shit. So this was the case with the second one. I was really happy and stuff. And then she told me that congratulations, your masters have just got cleared with WS. Now I would request you to send me all the documents, like the basic documents, like for the initial stage, like IELTS and WS, and send me your resume and stuff, and then we'll make a profile. We'll wait and see whenever the next draw comes and see if you guys can clear that. So 26th को या 27th को हमने सबमिट करवाया सितंबर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और 4th अक्टूबर को मेरा बर्थडे था. तो तनवीर और मैंने प्लान किया हम चलते हैं घूमने. वी वर ऑलरेडी सो पेस्ड अबाउट द होल सिचुएशन. फाइनली तुम्हारा स्कोर उतना हुआ, फाइनली तुम्हारा WS सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा था, तो हम गोवा चले गए. तो 4th अक्टूबर को बर्थडे था, तो हम गोवा में ही थे. ठीक है, तो हुआ ये. बाय द वे, गोवा व्लॉग्स आर देयर ऑन माय चैनल. हाँ, लिटिल यू हैव टू गो बैक और जस्ट सर्च बानीप्रीत कौर गोवा व्लॉग. सो माय बर्थडे व्लॉग्स आर देयर. तो 3rd को रात को 12 बजे वी डिड ऑल द सेलिब्रेशन एंड स्टफ. तो उसके बाद ना रात को वी वर सिटिंग एंड चैटिंग. तो हुआ क्या, आफ्टर 12, so there's this email that your case officer will make it for you. That will be a common email ID and a common password for you and the case officer, जिसपे सारी कैनेडा रिलेटेड मेल्स आएंगी. वो एक ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी जो वो यूज होगी ऐसे कामों के लिए. हुआ क्या, रात को ना वो उस पे एक मेल पॉपअप हुई कि देयर इज एन अपडेट ऑन योर प्रोफाइल, ऐसे करके हुआ. सो वी वर रियली एक्साइटेड एंड वी वर रियली हैप्पी अबाउट द होल सिचुएशन. पॉजिटिव थे हम तब तक ना, ऐसे कुछ नेगेटिविटी नहीं थी. उसके बाद हम सो गए, बहुत मुश्किल से सोए कि हमें जानना है, बिकॉज रात में यहाँ पे 12 बजे से लेट हो रहा था इंडिया में. तो ऑब्वियसली ऑफिस में केस ऑफिसर ये सब तो होंगे ही नहीं, तो चलो सो गए. अगले दिन अराउंड 11ish मुझे फोन आता है मेरी केस ऑफिसर का, अमनदीप का, एंड शी इज लाइक बहुत ही कूल एंड काम, कंग्रेचुलेशंस आपका ITA आ गया. एंड मैं इतनी डरी हुई थी, मुझे लगा ऐसी बात करनी है, ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, कुछ गड़बड़ ना हो जाए. मैंने कहा थैंक यू, टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो ऐसे फिर फोन रखने के बाद तनवीर और मेरा एक्साइटमेंट एंड सेलिब्रेशन लेवल नेक्स्ट लेवल था. बट आई वॉज रियली हैप्पी, मेरे बर्थडे पे ITA आया एंड दिस वॉज द बेस्ट गिफ्ट आई कुड गेट. सो दिस इज लाइक द बिगेस्ट स्टेप. ये तुम्हारा समझ लो 80% स्टेप तुम्हारा क्लियर हो गया. उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर तो समझ लो तुम्हारी डूबनी थी नहीं है वैसे वाला. तो ये चलो बहुत मेजर स्टेप था, क्लियर हो गया. मैं गोवा में ही थी और मेरे पास मेल आ गई थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मुझे भेजने हैं केस ऑफिसर को विदिन 2 months. 6 अक्टूबर को हम वापस आए गुड़गांव और सारा हम भागदौड़ में लग गए. भैया फोटोज खिंचवानी है, ये वो 1000 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. उस पर भी एक वीडियो है कि क्या डॉक्यूमेंट्स वो 2 महीने में सबमिट करने होते हैं. तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हमने शुरू कर दिए तनवीर और मैंने. जैसे ही हमने ये चीज करी तो जो एक डॉक्यूमेंट अटक गया ना, वो था मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जर्मनी से, बिकॉज जर्मनी में 6 महीने रही. तो हर चीज हो गई 15 दिन के अंदर, 2 महीने की भी जरूरत नहीं थी हमें. इस डॉक्यूमेंट ने जान खा ली. उस पर भी एक वीडियो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जर्मनी से, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया है, कैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस बदनाम है और बहुत मुश्किल हुई. फिर मेरे को वो मेरे एड्रेस पे पहुंचा ही नहीं, 2 महीने टाप गए. टापने के बाद 7 दिन बाद वो आया. और क्यों? क्योंकि मैंने एम्बेसी का एड्रेस दिया फिर दिल्ली वाली. तो चलो वहां पे पहुंचा. वहां पे पहुंचने के बाद मैंने कलेक्ट किया. अब हुआ क्या, केस ऑफिसर ने रिकमेंडेशन दी हम आपकी फाइल विड्रॉ करवा लेते हैं, फिर से CRS कोड जब आएगा फिर से डाल दें. पर उसमें एक रिस्क ये है कि क्या पता CRS कोड ऊपर हो जाए और फिर हमारा ना फिर बैठे रह जाओ. ऐसे वाला बहुत नेगेटिविटी सोच थी. तो मैंने अमनदीप को बोला, मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, हम फाइल पड़ी रहने देते हैं और डॉक्यूमेंट का वेट करते हैं. इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, एक वो रिजेक्ट करें तो करें ना, तो हमारे पास एटलीस्ट टाइम होगा. और दूसरा ये कि अगर वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को ये तब समझ में आया था, हमने दिसंबर में डाली थी, तो तब क्रिसमस के पास है, ये लोग वैसे ही काम नहीं करते हैं, तो हो सकता है हमें वो फ्री टाइम मिल जाए, जिन्होंने हमारी प्रोफाइल खोली ना हो वैसे. तो आगे से मेरी केस ऑफिसर ने कहा हाँ दिस इज अ गुड आइडिया, वी कैन डू दैट, बट ऑल्सो देयर इज दिस पॉजिटिव पॉइंट दैट इवन इफ we are unable to submit this document and these people really open your file and start fiddling with it, still they would give you some time to submit this document if the document is missing. मैंने कहा फिर तो sorted है, फिर तो withdraw करने का कोई point ही नहीं है, तो हम wait करते हैं. So I've crossed 2 months of the submission of documents. Then I got my PCC Germany certificate and it was like 3, 4 or 5 days post my due date of the submission of documents. फिर हमने ये submit सारा कुछ करवा दिया दिसंबर में.
उसके बाद 13 दिसंबर को जब हमारी एनिवर्सरी होती है तो हम अमृतसर गए हुए थे गोल्डन टेम्पल। वहां पर हम ना ऑटो में बैठ के जा रहे गोल्डन टेम्पल, ठीक है, अपने होटल से उधर जा रहे। तो वहां पे मुझे मेल आती है और मेल में आता है दैट योर फाइल हैज बीन रिव्यूड। रिव्यूड मतलब कि बेसिक छोटी सी चीज है, आम चीज है कि तुम्हारी फाइल भैया देख ली, हमने देखी है, खुल चुकी है, ऐसा मतलब बेसिक। हाँ, जैसे होता है ना कुछ भी चीज, वी हैव रिसीव्ड योर मेल, वैसे वाला बेसिक। बट जिसके साथ फर्स्ट टाइम है उसके लिए तो बहुत एक्साइटिंग है ये चीज। हम बहुत खुश हुए कि पहली गुड न्यूज बर्थडे पे, दूसरी गुड न्यूज एनिवर्सरी पे। सो इट वाज ऑल गुड इन द हुड। या देन व्हाट हैपेंड वाज, फिर हमने कहा चलो ठीक है, वेट करना है। केस ऑफिसर से बात हुई, केस ऑफिसर ने कहा 6 मंथ्स का फिर वो वेट होता है, 2 महीने के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। तो ये आ गया रिव्यू वाला, हमने वेट किया। फिर जैन में मॉम के बर्थडे पे आया कि भैया तुम्हारा मेडिकल हैज बीन पास्ड। सो दिस इज टेक्निकली द फर्स्ट स्टेप। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग, और ये फिर से एक और होता है जैसे मिरेकल्स हो रहे हैं, तो ये एक और चीज हो गई। सेम डे पे मेरी मॉम का बर्थडे होता है और तनवीर के ब्रदर का बर्थडे होता है। तो उस पे हमारे को ये आ गया कि योर मेडिकल हैज बीन पास्ड। तो अगेन इट वाज लाइक अ गुड न्यूज एंड वी वर वेरी पॉजिटिव एंड स्टफ। फिर ऑब्वियसली मैंने अपनी केस ऑफिसर को फोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गया है और अब तो मुझे लग रहा है जल्दी जल्दी आ जाएगा सब। तो उसने कहा आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ठीक है ना। उसने कहा कि आप रुक जाओ, 6 महीने का पकड़ के चलो। क्यों? क्योंकि लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द बैकलॉग्स। इतने लोग इमिग्रेट कर रहे हैं, इतने लोग अपनी फाइल्स डाल रहे हैं। So don't really be so happy about things which are happening and don't really expect a lot with the timeline. They were like okay. तो उसने मुझे प्रॉपरली ना ऐसे डिप्रेस करके बोला शांति से बैठ जाओ, ठीक है। She was very polite but तो हमने कहा चलो ठीक है ओके। तो हमने ना वेट किया और हमने जितने भी मैंने बहुत ज्यादा ना पब्लिक प्लेटफॉर्म से मैंने अपने आप को सब्सक्राइब किया हुआ था, यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी। तो एज पर एक्सपीरियंस क्या पता चल रहा था, लोगों के एक्सपीरियंस से 2 महीने में आ जाता है, 3 महीने में, वो 6 मंथ्स में बता रही हूँ, या 4 महीने में 90% लोगों का। बाकी 10% का होता है 6 महीने में आ गया, 5 महीने में। तो मैंने कहा मैं तो ऑब्वियसली 90% में आऊंगी ना। तो इस सोच के साथ हम चल रहे हैं, हर महीने उम्मीद लगाकर इस महीने आ जाएगा। अब किसका बर्थडे आ रहा है, अब किसकी एनिवर्सरी आ रही है, इस दिन तो पक्का आएगा ही आएगा, ऐसे वाला फुल उम्मीद के साथ। चलो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने टाप गए। अब 6 मंथ में थे हम। 6 मंथ के लास्ट वीक में जब एक हफ्ता 7 दिन बचे थे, 7-8 दिन, तो मैंने ना कॉल किया, ऐसे तुम कॉल कर सकते हो। तो हमने कनाडा कॉल किया और हमने डिटेल्स सारी अपनी दी और पूछा कि भैया क्या हिसाब किताब है, कहाँ पड़ा है और अब हफ्ता बचा है। ऐसे नहीं पूछा, बहुत तरीके से पूछा कि बता दो कहाँ है, ऐसे वाला। हाँ, डिड लाइक पुट मी ऑन होल्ड फॉर गुड 5, 7, 10 minutes and then he was like let me just go through your profile. So he was like I am going through your profile, everything is fine, you don't really have to worry about it, it's just that we have a lot of backlogs, so that is why it is taking a lot of time, but I think you should not worry and wait and everything will be fine. पर हम तो हो चुके थे बहुत नेगेटिव। तो इस बंदे ने जितनी भी मुझे सहानुभूति दी ना, उसने काम तो किया नहीं। हम हो चुके थे प्रॉपर नेगेटिव, प्रॉब्लम फिर से आएगी वैसी वाली सोच बना ली थी। और इस चक्कर में ना हमने जो फैमिली के साथ टाइम था ना, उसको एंजॉय करने की बजाय ना हम इन परेशानियों में, इन टेंशन में, इस चीज में लग गए। अब लास्ट डेट आई 6 मंथ की और वो चली भी गई, जैसे आई वैसे गई, नहीं आया हमारा। फिर तो हम डिप्रेशन, मतलब ऐसा डिप्रेशन कि हमसे तो छिन छुन गया सब कुछ, सब खत्म हो चुका है, वैसी वाली चीज। इतनी मेहनत करी, मतलब मैं तो ऐसे 1-on-1 भगवान से बातें, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये वो फुल बातें चल रही हैं कि भैया डिप्रेशन हो गया है मुझे, ये वो। मैंने किसी का बुरा नहीं, मतलब फालतू बातें, वो तो मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगी। तो वो सब चीजें चल रही हैं, ठीक है, मैंने इतनी मेहनत करी है एंड ऑल ऑफ दैट। चलो, तो वो सब हुआ। 5-6 दिन ऊपर हो गए जब 6 मंथ्स को, तो फिर हमें मेल आती है। तो सुबह 7 बजे के अराउंड मैं किचन में जाती हूँ और तनवीर का भी ना ऐसे हमारा मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा आ गया था और हम इतना हिल चुके थे मेंटली कि ना तनवीर भी सुबह 3 बजे उठ के एकदम से मेल चेक करता है, रिफ्रेश। हम तो रिफ्रेश करे जा रहे हैं यार, आई है मेल, हमें नहीं मिल रही रिफ्रेश। तो हम लॉग आउट लॉग इन, फिर 4 बजे उठ के चेक कर रहे हैं, वो 6 बजे। तो दिस वॉज दिस वन डे, मैं किचन में जाती हूँ, सुबह 7 बजे उसने मेल चेक करी और ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम। तो वो जो वॉक थी ना फ्रॉम द किचन टू द बेडरूम, आई नो ही शाउटिंग माय नेम बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बट आई डोंट नो इफ द रीजन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। Either it could be it's a positive reply and we have to fly to Canada, or else it is something like that, sorry your thing, this thing is rejected and stuff. And then मीर का भी एक फंड है, उसका सरप्राइज देने का भी ना टाइमिंग इतना वंडरफुल है कि he was like baby
मैंने कहा तनवीर बता यार, इट्स नॉट द टाइम टू डू एनी काइंड ऑफ मजाक, जस्ट टेल मी कि क्या हुआ। इसका आ गया बेबी आ गया। एंड देन बहुत जो भी मतलब सेलिब्रेशन एंड फन एंड स्टफ, बट तब तक हम इतना टूट चुके थे ना, तो वो जो बर्थडे वाले दिन गोवा में हमने सेलिब्रेट किया, फन किया, वो सब चीज नहीं हुई इमीडिएटली, मतलब इमीडिएट रिएक्शन में। एंड वी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब हम दोनों बेड पे बैठ के रो रहे हैं, मतलब रो ही जा रहे हैं, ठीक है, काफी देर तक। फिर हमने रोते रोते ही, साथ में दिमाग तो चलाना ही, रोना अलग, रोते रोते ही हम साथ में बुक करवा रहे हैं डेट वीजा के लिए कि हमने आज जाकर पासपोर्ट सबमिट करवा देने। रोई भी जा रहे हैं एक दूसरे को, यू नो, कडलिंग एंड कंफर्टिंग ईच अदर ऑल्सो। एंड ऑल्सो साथ ही साथ हम वीजा के लिए, पासपोर्ट सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं। तो हमें था, हमने एक दिन नहीं रुकना भाई, आज के आज ही हमने पासपोर्ट सबमिट कर देना। टेक्निकली 15 डेज का टाइम होता है। तो सुबह 7 बजे जब ये मेल आई, हमने फटाफट बुक करवा दिया 11 बजे का। हम घर से निकल गए जल्दी, नहाए धोए, कुछ नहीं किया हमने कहा निकलो, कपड़े चेंज, ब्रश किया और बाहर। तो हम फटाफट हमने डॉक्यूमेंट्स उठाए सारे, जो भी उस मेल में लिखे हुए थे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स ना हमने पहले से ही प्रिपेयर करे हुए थे कि क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या हिसाब किताब है। अब सुबह का टाइम, 11 बजे की अपॉइंटमेंट, तो हमने कहा पहले सरनन भवन से डोसा खा लेते हैं, ये सिर्फ हमारी फर्स्ट सेलिब्रेशन थी। तो हमने डोसा खाया, उसके बाद हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद अभी हमने किसी को नहीं बताया था फोन पे, मम्मी पापा किसी को नहीं बताया, बट सबमिट करने के ना हम बहुत एक्साइटेड थे। और हमने कहा इतना 6 महीने का टॉर्चर जो हमने पेरेंट्स को दिया है, तो उससे ना हम अब रिलीव हो गए, और वो भी काफी रिलीव्ड हो गए थे। तो हमने कहा चलो let's just give them a surprise and let's just go for a lunch, good buffet Indian lunch, हाँ। So this was the thing that we thought. And मुझे उनको फोन पे नहीं बताना था, क्योंकि एक्सप्रेशंस मेरे लिए देखना बहुत जरूरी होता है। क्या हुआ कि मैंने उनको, अब किसी एक को तो बताना ही था, पापा को बता दिया मैंने फोन पे। क्यों? क्योंकि ना मेरे घर वालों का ये सीन है, लंच टाइम पे, ब्रेकफास्ट टाइम पे, तो टाइम इतना टाइम पे हो जाता है कि जैसे हम 11 साढ़े 11 हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी सबमिट करवा कर 11:15 के करीब हमने जगह से हम निकले, और हमें पहुंचते हुए 1 सवा 1 डेढ़ बज सकता था। वी वर श्योर कि पेरेंट्स, मम्मी पापा ने तो 1 बजे लंच कर लेना है, इंक्लूडिंग दीप सिंह माय ब्रदर, 1 बजे उन्होंने लंच कर लेना है। हमने कहा वेस्ट हो जाएगा सारा सरप्राइज, तो हमने पापा को तो फोन पे ही बता दिया। एंड पापा वाज रियली हैप्पी, आई वाज लाइक ओह गुड बच्चा, गुड 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 गुड। तो वो अपना एक्साइटमेंट उन्होंने दिया, ठीक है। फिर हम, मैंने कहा चलो मम्मी और दीप को फेस टू फेस बताते हैं। तो हम पहुंचे, इतना मैंने फोन पे बात कर लिया था, मैंने कहा मम्मी मैं बहुत डिप्रेस हूँ, चलो हल्दीराम्स चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं, वैसे वाला, हाँ, छोटा फोटा कर मैंने टाल दिया। मम्मी कहती चल ठीक है आ जा, वैसे करके। बट फिर चलो इतना तो हो गया कंफर्म, लंच नहीं करेंगे वो। फिर हम वहां पहुंचे और फिर हमने सरप्राइज दिया, वो बहुत खुश, हमने बताया, एक्सप्रेशंस देखकर हमें बहुत मजे आते हैं। तो फिर हमने बताया और दे वर वेरी हैप्पी एंड स्टफ। तो मैंने कहा चलो, तो वहां से घर से हम लेकर गए फॉर द लंच, और पापा को बोला डायरेक्टली आ जाओ ऑफिस से। फिर हमने लंच किया, और उस दिन पता है खाना कुछ ज्यादा ही स्वाद लग रहा था, एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा खुशी, रिलीव्ड, शांति भरे मन से खाना खाया। ओहो, वो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। दिस वाज इट, ओके। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द डे व्हेन वी गॉट आवर पासपोर्ट बैक। सो दिस वाज दिस डे कि हमें 13 डेज के अंदर ही हमारा पासपोर्ट वापस मिल गया था, स्टैम्प एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, और बाबा जी को सॉरी बोला फॉर ऑल द फाइट दैट आई डिड। वी वेंट टू ईच एंड एवरी रिलेटिव एंड देन वी टोल्ड देम कि दिस इज द खुशखबरी एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। सो अगेन एक्सप्रेशंस देखने बहुत जरूरी थे। तो ये चीज हुई, लोग खुश थे, कई लोग एक्सप्रेशंस कैन नॉट टेल किसके, बट यस, वो एक्सप्रेशंस ही तो बड़े जरूरी होते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने कर दिया, अब हमने ना जिस दिन पासपोर्ट आया उसके 1 महीने की ही टिकट करवा ली। तो हमारे पास 1 महीना था टू एंजॉय विद फैमिली, स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड ऑल ऑफ दोज, एंड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ पैकिंग। यार वी कुड वेट। हमारी लास्ट डेट थी जिस दिन हमने मेडिकल दिया था अक्टूबर में, गोवा से वापस आकर वो जो 2 महीने के टाइम में मेडिकल दिया था, वो हमारी लास्ट डेट थी। तो उससे पहले ट्रैवल करना था हमें कनाडा, बट हम इतने एक्साइटेड थे, हमने कहा नहीं 3 दिन भी नहीं रुक सकते, बस फटाफट बुक कराओ फ्लाइट। तो महंगी भी हुई फ्लाइट, क्योंकि इतनी जल्दी बुक करवाई थी, इतने कम टाइम में, पर करवा ली। तो फिर जितने भी लोग थे उनको बता दिया दिस इज द डे दैट वी आर फ्लाइंग ऑन। तो उन्होंने हमें बुलाया, सबने डिनर्स पे और सब कुछ। हमारी फेवरेट डिशेस बना के रखी हुई थी, राजमा चावल एंड आई लव अरबी एंड बहुत ऐसी चीजें। चलो ठीक है, एक मेरे कजन्स की साइड हमने गेट टुगेदर किया, एक तनवीर की कजन्स के साथ गेट टुगेदर किया। तो दोनों ही साइड बहुत फन था और दोनों बहुत डिफरेंट थे। ये मेरे ना इंस्टा स्टोरीज के हाईलाइट्स में होंगे, क्योंकि पुरानी चीज है, इंस्टा स्टोरी पे तो होगी नहीं, बट यू विल सी इट इन द हाईलाइट्स। या
The farewell is over. Now I will jump to the day when we had to fly. और पता है जो मेरा लास्ट लंच था ना पेरेंट्स के साथ, वो भी मैंने ना इंस्टा स्टोरीज के हाईलाइट्स पे होंगे, देखना। हाँ, बहुत स्वाद खाना था वहाँ पे। वापस जाऊंगी ना, मैं वहाँ पे जरूर जाऊंगी दोबारा लंच करने। तो वो मॉम डैड के साथ लास्ट लंच था, टेस्टी। लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट फूड। तो वो हुआ। उसके बाद देन द डे हैड कम, वी हैड टू फ्लाई। सो we did tell everyone whosoever was asking and interested to come and see us off. So we did tell everyone that ये दिन है, हम इस दिन उड़ने वाले हैं, तो आना है तो most welcome, मिल सकते हो तो very good. So it was like that. We didn't know that these many people would be coming. So it was approximately 31 or 32 people who came to see us off. It was really sweet, really overwhelming, the whole situation, the whole atmosphere was really emotional and sweet. So I do have a vlog on that. Airport see off कर search. So it is a beautiful vlog. मिले हम सबसे, तो वहाँ पे फ्रेंड्स आए, फैमिली मेंबर्स आए। चलो हम एयरपोर्ट चले गए, अंदर चले गए। हमने सारा जो फॉर्मेलिटीज वो सब करवाया, चेक इन हो गया, सब कुछ हो गया। ऊपर बैठ के फिर हमने लास्ट इंडिया का इंडियन मील करा हमने, राजमा चावल। इंस्टा स्टोरीज पे वो भी होगा, हाँ देखना, बहुत फन आएगा तो वो हाईलाइट्स में जाके। तो वो चीज करी, तो वो सब करने के बाद obviously we boarded the flight and then we landed in Canada. Everything is there in a vlog. My whole video related to that is there in the vlog. Also my packing video, it was a hectic video and I have a lot of tips. पूरा detailed video बनाई है मैंने packing पे, वो भी देखो जाकर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने flight board करी और उसके बाद हम land हो गए। So this was the part 1. थोड़ा लंबा हो गया तो can't really do anything about it. But yeah, this was the experience. Beautiful, nice experience. Now what really happened after we landed from like the day 1 till 4 months experience. So I'll be sharing that in my next video. Yeah. Also, if you felt a little connected to the family moments, a little connected to whatever I said, you can share it with your friends. Or subscribe to the channel. Or like. Or do all. Why not? It's free. Okay then, I will see you in my next video. Okay, bye.